ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے کراچی، جہاں پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی طاہر اشرفی کے ہمراہ پریس کانفرنس جاری ہے۔ عالمی امن کے یعنی آج دنیا اسلام آباد اور پاکستان کو ارض الامن کہہ رہی ہے، لینڈ آف پیس کہہ رہی ہے، تو یہ میری فوج کے جوان جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں، میری پولیس کے جوان جو سڑکوں پہ کھڑے ہیں، یہ کیا کوئی اپنے بیٹے کو کروڑوں اربوں روپے کسی ماں کو دے دیں آپ کہ اپنا بیٹا دو، میں نے اس کو گولی مارنی ہے، وہ اپنا بیٹا پیش کرے گی؟ کسی میں اتنا حوصلہ ہے، ہمت ہے؟ میرا جوان تو اگر آپ جی ایچ کیو سے کسی وقت وہ آئی ایس پی آر بتائے کہ سیاچین جہاں جسم کا کوئی حصہ اس لباس سے باہر نکل جائے شل ہو جاتا ہے، وہاں جانے کے لیے کس طرح درخواستیں دی جاتی ہیں کہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت دی جائے، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سلامتی کے ادارے، ہماری پولیس، ہماری فوج، ہم یہ گزارش کریں گے بہادر طریقے سے پورے یہ تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ کی طرف سے کہ سیاستدان مہربانی فرمائیں، سیاست میں بھی متشددانہ رویے ختم ہونے چاہیے۔ آپ علماء کو تو کہتے ہیں ہم نے تو کر دیے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنی سیاست کے لیے اس وقت جب میری پولیس، ایف سی اور میری فوج کے جوانوں کی 42 لاشیں ان کے گھروں جا رہی تھی، اس وقت اگر آپ شہداء پہ بات کریں، غازیوں پہ بات کریں، آپ کو تو چاہیے آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کی ہمت بڑھائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور الحمدللہ ہم روز اول سے اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان آپ دیکھ لیں جہاں فوج مضبوط نہیں تھی اور جہاں اس طرح کی صورتحال آئی، ان اسلامی ممالک کا حال بھی دیکھ لیں کیا ہے۔ اور آج آپ کا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ایران امریکہ مذاکرات، پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس امت کو ایک رکھا ہے، میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو وہ آپ کی قیادت نے مسلم عرب دنیا اور ایران کے درمیان تصادم نہیں ہونے دیا۔ آپ کے فیلڈ مارشل، آپ کے وزیر اعظم، آپ کے پریزیڈنٹ، آپ کے علماء، یہ جو وحدت اور اتحاد کا قافلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اور یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں سیاست کیجئے، اپنے ملک کے ان بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اس فوج میں کون ہے؟ کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہے یا افغانستان سے آیا ہے یا تاجکستان؟ یہ میرے اور آپ کے بھائی اور بیٹے ہیں، یہ میری فوج ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ اور یہ آج کے اس جو ہے فورم کی طرف سے قومی پیغام امن کمیٹی اور صوبائی پیغام امن کمیٹی کی طرف سے بھی میں یہ گزارش کروں گا اور میں معافی مانگتا ہوں اپنے فوج کے جوانوں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کی ماؤں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آگے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو۔ ہم زندہ ہیں الحمدللہ، ہم ابھی مرے نہیں ہیں، یہ قوم زندہ ہے، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی۔ میں اس ماں کو جو کل رات کہہ رہی تھی کہ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تمہیں، میں نے بیٹا شہید کروایا ہے، تم بتاؤ میں تمہیں پیسے دیتی ہوں۔ اگر پیسوں سے بیٹے تولے جاتے، یہ پیسوں سے نہیں تولے جاتے، یہ اس بات پر بلیو رکھتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور ہمارا یہ یقین ہے، ہم تو ہر نماز میں شہادت کی دعا مانگتے ہیں۔ کون سا مسلمان ہے جو شہید نہیں ہونا چاہتا؟ اصحاب رسول و اہل بیت سے لے کر کل اگر کوئی اٹھ کے کہے گا کہ یہ مولوی صاحب جو ہے یہ تو نماز پڑھاتا ہے، پیسے لیتا ہے، اس کو اجر کس چیز کا ملے؟ اور اگر اللہ قیامت کے دن ہمیں کہہ دے کہ تم تو پیسے لے کے نمازیں پڑھاتے تھے، مدرسے چلاتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، نیک کام کرتے تھے، اجر کس چیز کا؟ تو اللہ نے تو بار بار کہا ہے کہ تم یہ کرو گے میں تمہیں اجر دوں گا۔ اور شہیدوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، ان مجاہدین کی جو اسلامی ریاست کی سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کے دھول جو اڑتی ہے اس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ میں اپنی طرف سے بھی، اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی ان شہداء کے والدین سے، بچوں سے، بیویوں سے، بہن بھائیوں سے معافی کا طلبگار ہوں جو دکھی ہوئے ہیں۔ ہم آپ سے زیادہ دکھی ہوئے ہیں۔ کیسے میں اس کی توہین کروں جو میں سوتا ہوں اور میرے لیے اپنی جان دے کے قربان ہو جاتا ہے؟ اس لیے میں پھر عرض کروں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے، اس ملک پر ایک دہشت گردی کی جنگ جو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اپنی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوم کھڑی ہے۔ فتنہ خوارج کو بھی سب نے پہچان لیا، فتنہ ہندوستان کو بھی پہچان لیا۔ ہم ان کے بالواسطہ، بلا واسطہ، دانستہ یا نادانستہ، میرے یہ چاروں جملے پلیز یاد رکھیے
किसी भी तौर पर हम उनके सहूलतकार न बने। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी से कि वो 1 मिनट में आपके सामने अपने जज्बात का इजहार फरमाएँ। मोहतरम जनाब सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इज्जत बाग वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कौमी पैगाम। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अल्लामा ताहिर अशरफी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। इस मौका पर अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि दहशतगर्द मुल्क के अमन के दुश्मन हैं और मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौज, पुलिस और रेंजर्स के एहलकार सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि कौम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो जरेशनवाद जिस अंदाज से मुसल्लत की गई, मुझे यहाँ पर सदर ममलकत इज़्ज़त माब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब की वसीयत और फरासत को खराज तहसीन पेश करना पड़ रहा है कि जिन्होंने बहुत साल पहले कौमी मुफाहमत का हमें उसूल रियासत सिखाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम महसूस कर रहे हैं कि वही हम मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम लेकर पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह पहुँच रहे। और हम ये कहने आए वज़ीर आला साहब खिदमत में कि इंशाअल्लाह हम हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं और जिस तरह सिंध को आपने अमन का गहवारा बनाया, मजीद इसके अमन को यकीनी बनाने के लिए हमारी दुआएं दामे दिल में कदर सुपने तावन हमारा आपके साथ शामिल होगा। मोहतरम डॉक्टर राग़ब नईमी साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल। पाकिस्तान के दूरदराज में पाकिस्तान और अमन की आवाज़ को पहुँचा रही है और इस अमल की कोशिश है कि मुल्क में आने वाले इवेंट्स प्यार और मोहब्बत के साथ, ईमानदारी के साथ, इत्तेहाद और भाईचारे के साथ मुल्कों पसीन हो। और इसकी बड़ी मिसाल अभी जो मरहम का महीना गुजरा, जिस अमन और आशनी के साथ गुजरा, वो एक इसका बड़ी सबूत है। जो हम ये समझते हैं कि ये मसालिक और ये मज़ाहिब जब आपस में एक जगह पर भी बैठेंगे और एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, तो इसके बहुत बेहतर नताइज बरामद होंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क में अमन के क़याम को दुरानी अदा होगी बल्कि नजर अमन कायम होगा तो इससे मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। डॉक्टर आसिफ मीर साहब। माल का हक़ के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को दुनिया भर में इज़्ज़त, शान और कबूलियत अदा की। उसका असर हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता की जंग में इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की जंग का तारीख़ बन हुआ है। लेकिन इस मौके के ऊपर हमें एक तरफ इतना हिंदुस्तान और दूसरी तरफ इतना फारिश का सामना है। हमारे कारी शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर साहब ने 2010 में दहशत गर्दी और फितना अल-ख़वारिज के नाम से एक मखसूस फतवा जारी किया और अपने अस्करी और आमतुन्नास को एक फिक्री क्लैरिटी दी कि ये दहशत गर्द हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम तस्लीम ने उनके बारे में फरमाया कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं। तो आज भी हम उसी के लिए वो निसाब हम अपने तलबा को बतौर निसाब पढ़ा रहे हैं। इस्लाम का इसके लिए पॉलिसी मरतब की जाए और आइंदा फिक्री नजरियाती क्लैरिटी और शौरी क्लैरिटी के साथ मजहबी तबका जो है अमन और रवादारी के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। अल्लामा आरिफ वादी साहब। इंशाअल्लाह हम ये आहद कर रहे हैं पूरे मुल्क में जिस तरह हम मोहब्बतें फैलाने के लिए, इत्तेहाद कायम करने के लिए, तौहीन तकफीर को रोकने के लिए, शिद्दत पसंदी को रोकने के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। इस मुल्क का अमन हमें बहुत प्यारा है कि ये मुल्क अल्लाह की नेमत है। भाई सद्दाम को अल्लाह ने हमें अता फरमाया था। इसकी खिदमत करना हम इबादत समझते हैं, इबादत के लिए काम करना इबादत समझते हैं। इन्ना हाली उम्मत वाहिदा के वो अमली तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अल्लामा ताहिर साहब की सरबराही में ये काफिला अमन का चला है, मोहब्बत को चला है, नफरतें खत्म करने के लिए और तकफीर को मिटाने के लिए और तौहीन को मिटाने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि सियासी तमाम सियासियों को ये पैगाम दूंगा, शुहदा
اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور یہ پیغام دوں گا کہ جہاں یہ دینی فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے ہم نے کہے ہیں، وہاں سیاسی فرقہ واریت کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، ایسی انشاءاللہ قتل نہیں ہونی چاہیے۔ آج جس سے ملک میں انتشار پھیلے اور خصوصاً شہداء کی فیملیز کے دل مجروح ہوں، آج جزاکم اللہ خیر۔ علامہ محمد حسین اکبر صاحب برکت کے لیے 1 منٹ۔ ڈاکٹر صاحب مائک بند کر۔ ہمارا سلامتی کے ساتھ تمام پروگرام گزرے۔ آج سے سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ گزارش ہے کہ 40 کے جلوس ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، زائرین مجالس میں جاتی ہیں، خاص طور پر کربلا بھی اسی راستے سے جاتے ہیں، تو ان کو سہولت مہیا کرنا آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں بھی ہے۔ ہم بھی درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح حرام کے آخرین انتظامات سے 40 کے اور آنے والا ربیع الاول کا مہینہ ہے، وہ انتظامات بھی مثالی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دشمن کے تمام طرح ہم لوگ کو ناکام بنائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ رجیش کمار صاحب 1 منٹ۔ جس سے پہلے تو شکریہ۔ سب سکھوں نے ہمیشہ امن، رواداری، بھائی چارے کو فروغ دیا ہے اور سب پاکستان کی تمام مدر وطن اقلیتی برادری اس عزم کے ساتھ رہتی ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم سب کو امن کے لیے، رواداری کے لیے، بھائی چارے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں یہاں پر پاکستان کی تمام اقلیتی برادری کی جانب سے ہمارے جو شہداء ہیں ان کی فیملی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ عزم کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی تمام مدر وطن اقلیتی برادری پاک و فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک و فوج زندہ باد۔ مفتی یوسف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان دراصل پیغام اسلام ہی ہے اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے، ہر فرد تک پہنچانے کے لیے، پاکستان کے اندر کام کے لیے ہم ہر جگہ حاضر ہو رہے ہیں۔ سوالات ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے پاکستان نے ایک عظیم کردار دیا ہے اور عظیم مقام ہے۔ اس میں جہاں ہماری اور سبق تھا، اس میں سب سے بڑا کردار ہماری پاک فوج کا تھا۔ بنیان مخصوص موقع حق میں بھی ہم حیثیت عوام اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی۔ پاکستان کے اندر تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد اور رواداری سے رہنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم مل کر دشمن کے عزائم کو ناکام بنائیں۔ اور دشمن جو اس وقت تدبیر کاری کر رہا ہے اور سازشیں کر رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے ذہن خراب کر رہا ہے، یقیناً ہم سب نے مل کر انشاءاللہ کو ناکام بنانا ہے۔ پاکستان کے تحول استحکام کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پیغام امن کمیٹی کی زیارت کی، مہمان نوازی کی اور تعاون کا یقین دلایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے کہ بہت سارے ہمارے ان بے چینیوں کا حل ہے جن سے آج پاکستان گزر رہا ہے۔ یہ فتنۃ الخوارج اور فتنہ ہندوستان اور یہ سب و ستم اور توہین اور گستاخی اور تکفیر اور فرقہ واریت، اس کی ایک بہت بڑی بنیاد یہ ہے کہ مذہبی طبقے میں اور ریاست اور حکومت کے درمیان گیپ ہے۔ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ میں بہت امید رکھتا ہوں کہ اگر ہماری ریاست، حکومت اور خاص طور پہ سندھ حکومت اس کی اگر سرپرستی کرے گی، ہمارے بہت سارے مسائل ملکی سطح پر بھی حل ہوں گے، بین الاقوامی سطح پر بھی ہوں گے اور صوبائی سطح پر بھی ہوں گے۔ ہمارے جامع الرشید میں کہ آج کل ایک کتاب آخری مراحل میں، اس میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ تمام آیات، احادیث اور فقہاء کے اقوال اس میں نقل کی ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ اقلیتوں کی جان، مال، عزت جیسے ان کی بات ضروری ہے، ایسے ہی جیسے کسی مسلمان کی غیبت کرنا ناجائز ہے، اس سے حسد کرنا جائز ہے، اقلیتوں کے ساتھ بھی حسد کرنا ناجائز ہے، غیبت کرنا ناجائز ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین نے ہمارے
ذہن پر بھی پیرا بٹھاتے ہیں کہ آپ اقلیتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ کمیٹی انشاءاللہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے گی انشاءاللہ اور تمام اقلیتوں کو سکون ملے گا. مفتی کریم تمام مساجد کے لوگ اس میں موجود ہیں. جہاں بھی تبرہ ہوتا ہے, سب کچھ ختم ہوتا ہے, گستاخی ہوتی ہے, تو اس میں اتنے حضرات موجود ہیں کہ ہر جگہ ہی لوگ جا سکتے ہیں. تکفیری کرنے والوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں, سب کو ستم کرنے والوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں. تو آپ کی سرپرستی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو بہت بڑا ایشو ہے کہ مدارس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا. تو 15 بورڈ میں سے 10-11 بورڈ کے ذمہ داران یہاں اس کمیٹی میں لیے گئے ہیں تاکہ یہ پیغام نیچے تک جائے, نصاب کے اندر چیزیں شامل ہوں اور طلباء کی ذہن سازی ہو. میں امید کرتا ہوں کہ بہت اس میں برکت ہوگی, اور خاص طور پہ سیم صاحب آپ کی پارٹی کے ماتھے پہ جو بہت بڑے بڑے تاج ہیں ان میں 73 کا اسلامی آئین ہے, ختم نبوت کا قانون ہے, OIC کی تاسیس اور بنیاد ہے, اور 8ویں پروگرام کی بنیاد ہے جس کی برکت سے آج ہم پوری دنیا میں ہمارا گزر ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے اور بھی اپنے نامہ اعمال میں اپنے اس میں ان چیزوں کا اضافہ کریں, اور یہ کمیٹی مکمل طور پہ آپ کو سپورٹ کرے گی, آپ کی مدد کرے گی. میں اس مرتبہ پھر تمام صوبائی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا, اور تمام جو مرکزی کمیٹی جو تشریف لائی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو صوبائی کمیٹی ہے ان سے میں درخواست کروں گا کہ ہم جامعۃ الرشید کی جو خدمات آپ کو رہے ہیں ہمارے جزاک اللہ. مفتی کریم خان صاحب 1 منٹ بس. جتنی بھی لڑائی ہندوستان کے ساتھ ہوگی وہ غزوہ ہند کا حصہ ہے, اس لیے یہ سارے شہداء غزوہ ہند ہیں. تو میں اس بیان کی مذمت بھی کرتا ہوں, اور یہ بھی کہتا ہوں الفاظ بھی واپس لیے جائیں اور شہداء سے معافی بھی مانگی جائے. ہم سبھی شہداء سے معافی مانگتے ہیں, پاکستان کی بات. مفتی نعمان نعیم صاحب شکریہ ادا کر دیں پھر ڈی جی صاحب. سب سے پہلے تو میں CM صاحب کا اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دھیانی کروائی اس بات پر کہ صوبائی پیغام امن کمیٹی ایز اے کوآرڈینیٹر میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے ان کا تعاون کی بھی یاد دہانی کروائی, اور اس بات پر بھی یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ ان کو ایک آفس بھی مہیا کیا جائے گا. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے دست و بازوں ہیں ہر معاملے میں غیباریت کے خاتمے کے لیے, شدت پسندی کے خاتمے کے لیے, محبت کو فروغ دینے کے لیے ہم ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. ایک وہ قطرہ جو اللہ کے سامنے آنسو کا قطرہ بہا ہو, اور ایک وہ قطرہ جو خون کا قطرہ اللہ کے راستے میں بہا ہو. اللہ تعالیٰ کو 2 آنکھیں بہت پسند ہیں. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں جاگی ہو, اس آنکھ کو اللہ رب العزت کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں اس پر پاسبانی کے اندر وہ آگ جاگی ہو, وہ آگ بھی جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہداء کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور اسی طرح افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی بہترین کارکردگی پر. اور یہ جو کمیٹی بنی ہے پیغام امن کمیٹی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی فعال کمیٹی پہلی مرتبہ. جزاک اللہ جی. میں علامہ طاہر اشرفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس کو فعال رکھا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت سارے حضرات ہیں, سب سے معذرت کیونکہ وقت کم ہے. علامہ ڈاکٹر اسد زیدی صاحب ہیں, مشہدی صاحب ہیں, ہمارے سردار صاحب بیٹھے ہیں, پنڈت صاحب. تو میں DGRE جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل ریلیجس ایجوکیشن ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ 15 جو اسلامی بورڈ ہیں پورے ملک میں, آج الحمدللہ ان میں سے 13 بورڈز کی نمائندگی اس
हॉल में हो रही है, जो बज़ाते खुद इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि ये वतस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की अमली तस्वीर है। और इसी पैगाम को लेके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, जिसके साथ तकरीबन 22,000 मदारस रजिस्टर हो चुके हैं, वो मदारस के लेवल पर पैगाम पाकिस्तान को पहुंचा रही है ताकि हमारे मुल्क में बाहमी अमन हो, हमारे बच्चे उनमें जो मसालिक के मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात हैं उनमें मुफाहमत हो, उनमें इत्तेफाक हो और बाहमी आहंगी हो उन तमाम मसालिक के अंदर। तो अभी आप ये देखेंगे कि ये अमली तस्वीर है कि जब भी किसी मदरसे में ट्रेनिंग होती है तो दूसरे मसलक के बच्चे भी आके वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो हम लोग इन तमाम जो वफाक हैं, 13 वफाक जो यहाँ पे मौजूद हैं, 13 बोर्ड्स के नुमाइंदे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत सिंध का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मजलिस का एहतमाम किया और ये मौका फ़राहम किया कि हम ये बात कर सकें कि हम पूरे मुल्क को, सूबे को अमन व अमान का गहवारा कैसे बना सकते हैं। और पैगाम अमन कमेटी का मेंबर होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि शायद ये काविश पहले नहीं हुई जिस शिद्दत के साथ, जिस जज्बे के साथ ये काविश अब हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। मैं आखिर में शर्जील इनाम मेमन साहब को, चूँकि लाजमी बात है इतलाआत और प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये शुक्रिया भी अदा करेंगे। और अभी सईद गनी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इन दोनों हजरात की तरफ से आप हजरात के लिए कहा गया, लेकिन चूँकि आपका वक्त कम है, जो कमेटी आई हुई है, तो इंशाअल्लाह अगली मरतबा मेज़बानी ये करेंगे। तो शुक्रिया अदा करते हैं आप तमाम दोस्तों का। शर्जील इनाम मेमन साहब को बात करना चाहते हैं। शुक्रिया। और चीफ मिनिस्टर हाउस में जो पैगाम है मेन कमेटी जो हमारी वफाक थी और सुबाई, उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने आज मजबूत किया और आप सबों के आने का बहुत शुक्रिया। और इस तरीके से पैगाम यही है कि हम सब ने मिलकर जो है अपने इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। और क्योंकि जितने भी मुख्तलिफ फ़िक्र हैं, जितने भी हमारे जो है मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इस पाकिस्तान में खुसूसन सिंध में रहते हैं, उन सब का की नज़रें आपकी तरफ होती हैं, उनके उलमा की तरफ होती हैं, उनके मजहबी रहनुमाओं की तरफ होती है। तो किसी भी किस्म के वाक़यात कभी हों तो उसमें हम सबको कम अज़ कम लोग आपको सुनते हैं, आपकी एक एक अल्फाज को लोग सुनते हैं, आपके अंदाज़ गुफ्तगू को लोग सुनते हैं। तो लोग यही समझते हैं कि जो आप उनके लीडर हैं, तो आपकी जो नरम गुफ्तगू और दूसरे की आप शायद को अभी तक मेनटेन करके बैठे हैं पूरे पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि इसकी पूरी कहीं मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हमेशा मजहबी हमांगी को फ़रोग़ दिया। आप देखा कि अगर कहीं पे कितनी बड़ी जारियत भी हो रही हो, भारत में जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ मुज़ालिम हो रहे हो, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी हमारे माइनॉरिटी वाले को कोई एक आंच भी नहीं आती, क्योंकि हम सब की ये मोहब्बत का जो हमारा तरीका है, हम उन एक्शन का भी रिएक्शन यहाँ से नहीं होने देते, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम सब एक गुलदस्ता है। पाकिस्तान नंबर दे दें मुझे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। परचम में भी जो सफेद पोर्शन है वो माइनॉरिटीज के हुकूक के लिए, तो हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। और तमाम हमें सबको मजहब हमी को आगे चलना है। और खुसूस तौर पर मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी वतन का दिफा है वो मजबूत हाथों में, और तमाम उन शोहदा जो कि शोहदा हैं या गाजी हैं, वो हम सब हमारे माथे का झूमर हैं, हम सब के लिए काबिल फ़ख्र हैं। और हम सब जो है उनकी कुर्बानियों को भी सराहते हैं, उनकी शहादतों को भी सराहते हैं। और हम सब ने मिलकर अपने अंदाज़ गुफ्तगू में शाइस्तगी इख्तियार करनी चाहिए और इस तरह की कोई हम बात ना करें जिससे किसी किस्म की किसी की दिल आज़ारी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, वज़ीर
आपको अपडेट करें कि कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अल्लामा ताहिर शफ़ी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। इस मौके पर अल्लामा ताहिर शफ़ी ने कहा है कि दहशतगर्द मुल्क के अमन के दुश्मन और मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फ़ौज, पुलिस और रेंजर्स के एहलकार सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि कौम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लामा ताहिर शफ़ी ने मज़ीद कहा है कि सियासतदान हमारे सिक्योरिटी अदारों को तनकीद का निशाना ना बनाएं बल्कि उनके जवानों का हौसला बढ़ाएं। उनका कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में अमन के दाई के तौर पर उभर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अल्लामा ताहिर शफ़ी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। इस मौके पर अल्लामा ताहिर शफ़ी ने कहा है कि दहशतगर्द मुल्क के अमन के दुश्मन और मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि फ़ौज, पुलिस और रेंजर्स के एहलकार सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि कौम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मानसून बारिशों के दौरान सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की हैं। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में मानसून बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर भी ब्रीफिंग दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी राना जामीन, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस मुलाकात की? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मानसून बारिशों के दौरान सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के साथ रवाबत मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की है। मुलाकात में वज़ीर आज़म को मुल्क में मानसून बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेशगी इत्तला निज़ाम को मुकम्मल फ़ाल बनाने और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के साथ ही इस हवाले से तावन पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जामीन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। और ख़बर यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की मुसद्दक़ा इतलात भी मौसूल हुई हैं, जबकि फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाक अमेरिका शराकत दारी दोनों ममालिक के दरमियान देर पा ताल्लुकात की ज़ामिन होगी। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमेरिकी बैनुल अक़वामी तरक्याती मालियाती कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बेंजामिन ब्लैक से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा शराकत दारी और सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में 6 पुलिस मुकाबले, 2 रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान हलाक, 5 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। CCPO डॉक्टर सरदार गयास गिल की खान ने फौरी नोटिस लेकर डिवीजनल SPs से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा है कि अमन और महफूज माशरे की तश्कील के लिए जराइम पेशा अनासर और मुनशात फरोशों की बेयकीनी नागुज़ीर है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में 6 पुलिस मुकाबले हुई हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं सिटी ब्यूरो चीफ गुजरांवाला राजा अफजाल अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी राजा अफजाल, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में 6 पुलिस मुकाबले हुए, जिसमें 2 रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान हलाक और 5 जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए। थाना सदर गुजरांवाला पुलिस मुकाबला रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात डीलर अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया, जिससे 2200 ग्राम चरस बरामद हुई। थाना धुल्ले पुलिस मुकाबला में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक डाकू, डकैती, राहजनी और चोरी की 25 से ज्यादा वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था।
गुजरांवाला सीपीओ डॉक्टर यास गुल का फौरी नोटिस डिविजनल एसपी से रिपोर्ट तलब। गुजरांवाला थाना सदर गुजरांवाला पुलिस मुकाबला मंशियात फरोशी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता बदनाम जमाना मंशियात फरोश अफजाल पुलिस पार्टी पर फायरिंग के बाद फरार होते हुए अपने ही साथी की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गया। कब्जा से 2 किलो 200 ग्राम चर्च बरामद और नाजायज असला भी बरामद हुआ। उसके हमराही साथी फरार हो गए थे। थाना धुले पुलिस मुकाबला अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा अफजाल, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके चकलाला मोहल्ला नूरानी में गैस लीकेज से खौफनाक धमाका, खातून झुलस कर शदीद जख्मी हो गई। धमाके से घर की खिड़कियां, दरवाजे और कीमती सामान तबाह हो गया है। अहल खाना के मुताबिक सीवरेज लाइन में गैस जमा होने से धमाका हुआ है। दिया सिलाई जलाते ही घर में जोरदार धमाका हो गया। मुकामी ज़राए ने बताया है कि 5 रोज़ कबल भी सीवरेज लाइन में धमाके हुए थे। शिकायत के बावजूद सुई गैस हुकाम ने मसला हल नहीं किया। अहल मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ की हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गैस लीकेज के बायस एक घर में ज़ोरदार धमाका हुआ है। अफसोसनाक वाक़या रावलपिंडी के इलाके चकलाला मोहल्ला नूरानी में गैस लीकेज से खौफनाक धमाका हुआ है। खातून झुलस कर शदीद ज़ख्मी हो गई हैं। धमाके से घर की खिड़कियां, दरवाजे और कीमती सामान तबाह हो गया है। अहल खाना के मुताबिक सीवरेज लाइन में गैस जमा होने से ये धमाका हुआ है। दिया सिलाई जलाते ही घर में ज़ोरदार धमाका हो गया है। मुकामी ज़राए ने बताया है कि 5 रोज़ कबल भी सीवरेज लाइन में धमाके हुए थे। शिकायत के बावजूद सुई गैस हुकाम ने मसला हल नहीं किया था। रावलपिंडी थाना सदर बैरूनी की हदूद में 2 ग्रुपों में होने वाली फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली है। फुटेज में मुल्ज़मान के चेहरे और उनके हाथों में असलहा वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। फुटेज में मुल्ज़मान की फायरिंग से राहगीरों में खौफ भी देखा जा सकता है। दोनों ग्रुपों का सरेआम असलहा से फायरिंग करना कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर सकता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा रावलपिंडी चौधरी नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी चौधरी नुमान, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज यह थाना सदर बैरूनी की हदूद सेक्टर 4 में मौजूद एयरपोर्ट सोसाइटी में 2 कब्जा ग्रुप की जानिब से फायरिंग का वाक़या पेश आया है। खोकर ग्रुप और राजा ग्रुप का जमीन के तनाज़ा पर इरादा कत्ल एक दूसरे पर सीधी अंधाधुंध फायरिंग की गई है। फायरिंग के दौरान दोनों ग्रुपों का एक एक बंदा शदीद जख्मी भी हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में मुल्ज़मान का चेहरा वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है। दिन दिहाड़े सरेआम फायरिंग करके लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना और मुल्ज़मान का फरार होना कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा करता है। दूसरी जानिब अवामी हल्कों में सख्त तशवीश की लहर बताई गई है। अवामी हल्कों का कहना था कि रावलपिंडी पुलिस, सीसीडी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के होने के बावजूद रावलपिंडी से गैंगवार और कब्जा ग्रुप जो है मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, शहरी खौफ में मुब्तला भी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे को चाहिए कि इन मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरी जानिब थाना सदर बैरूनी के SHO एजाज अजीम की जानिब से मुल्ज़मान के खिलाफ 324 समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान की तलाश जारी है। मुल्ज़मान के ठिकानों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी नुमान, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर खुसूसी पैगाम देते हुए कहा है कि टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद नौजवान ही मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के नौजवानों को टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारतों से लैस करने का अज़म का भी इयादा करते हुए नौजवानों को लॉन्सिंग, IT और टेक्निकल ट्रेड्स में शमूलियत की हिदायत की हैं। मरियम नवाज ने वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर खुसूसी पैगाम में कहा है कि टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारतों से मुस्तफ़ीद नौजवान ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात लाजवाल दोस्ती, बाहिमी एतमाद और एहतराम की रोशन मिसाल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के ज़ेर एहतमाम तकरीब हुई है। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और पाकिस्तान की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में अहम किरदार अदा किया है। चीन के कौंसल जनरल सेंजान ने कहा कि पाकिस्तान और चीन हर मौसम के आजमूदा स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि माह सफ़र मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें चांद नजर आने या न आने का ऐलान किया जाएगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों की रोशनी में सफ़र मुज़फ़्फ़र के चांद की रुयत का फैसला किया जाएगा। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने मुकामात पर होंगे। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि आज शाम सफ़र मुज़फ़्फ़र का चांद नजर आने का वाज़ेह इम्कान है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में यकम सफ़र 16 जुलाई को होने की तवक्को है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।